next topic which we will be discussing is from ray optics only, that is refraction of light. तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर एक मेजर पार्ट आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर ही देखना है. We already have some basic prior knowledge from 10th class what is refraction of light, how does it occur and when does it differ. इसमें स्पेशल केसेस क्या पढ़ने होते हैं. तो अगर हमारा रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए प्लेन सरफेस होता है तो अलग होता है, अगर वो स्फेरिकल सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो उसका रिफ्रैक्शन के लिए थोड़े से ज्यादा कंडीशंस अप्लाई करने पड़ते हैं. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पहले रिकॉल करेंगे, फिर हम जाएंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस. एट प्रेजेंट वी विल अंडरस्टैंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए प्लेन सरफेस. ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम अभी समझते हैं प्लेन सरफेस के कंसेप्ट में. सपोज दिस इज माय इंटरफेस, ये मेरा इंटरफेस है. This is my medium 1 and this is my medium 2. Any medium, but the difference what is to be noted over here, the difference is the difference in the medium densities. Optical density इनकी दोनों different होनी चाहिए. Optical density का मतलब a medium which is optical medium, its density is called as optical density. What is an optical medium? The medium through which light can travel is called a optical medium. Air, water, glass, kerosene, turpentine oil, diamond, most dense and most refractive material. ठीक है, तो होता क्या है, ये इंटरफेस है, सेपरेशन है. इसके ऊपर मीडियम 1 है, इसके ऊपर मीडियम 2 है. इसकी डेंसिटी अगर ρ1 है, इसकी डेंसिटी अगर ρ2 है, जहां पर अगर ρ1 लेस देन ρ2 है, मतलब नीचे वाले की मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है. ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इफ रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग obliquely at the interface of the two medium. Obliquely का मतलब at some angle with the normal or with the surface. This angle becomes angle of incidence I. When the ray of light enters from a medium, one medium to another, यहाँ पर इसकी density ज़्यादा है, इसकी density कम है. तो because of the change in the density, as the intensity is increasing, the speed of the light decreases. यहाँ speed of light क्या हो जाता है, कम हो जाता है. कम होने के कारण वहां पर रे ऑफ लाइट का पाथ चेंज होता है एंड द पाथ ऑलवेज चेंजेस इन द डेंसर मीडियम टुवर्ड्स द नॉर्मल. मींस द रिफ्रैक्टेड रे विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल. यहां पर ये नॉर्मल मेरा सपोज आई नेम इट एज n and dash. द रे ऑफ लाइट which should have gone like this, it bends towards the normal. अगर इसका उल्टा कंडीशन हो जाता है, if it is ρ1 is less than ρ1 is greater than ρ2, in this condition what will happen, the ray of light bends away from the normal. मतलब उसके ओरिजिनल पाथ से वो थोड़ा दूर हो जाएगा. ठीक है, समझ में आई बात? ओके, so this is what is called refraction of light. So what is refraction of light? The bending of a ray of light when it enters from one medium to another, then it is called as refraction of light. ये basic sense है refraction of light. What is the cause of refraction? That is also very important. The change in the speed of light. जब एक ray of light एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है और उस चेंज के कारण रिफ्रैक्शन होता है. ठीक है, this was what all about refraction. Now based on refraction हमारे पास refraction of light के दो लॉज थे. पहला लॉ तो हमारा रिफ्लेक्शन लॉ से मैच होता है. क्या बोलता है? The incident ray, the normal and the refracted ray all lie on the same plane. भाई ये इस बोर्ड से टकरा के आ रही तो रिफ्रैक्टेड रे भी क्या होगा, इस बोर्ड से टकरा कर ही जाएगी. ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है. It will go with the board, sticking to the board. This is what is the meaning of it. All lie on the same plane, सब same plane पे lie करते हैं. सेकेंड लॉ इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑल्सो. ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? अब यहाँ पर देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता था, I इक्वल्स टू R. यहाँ पर कहीं पर भी कभी भी I और R इक्वल होगा. अगर I और R इक्वल हो गया तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है. So always there should be a difference between I and R. What is R over here? This is my angle of refraction R. This Snell's law relates or gives us the relation between angle of incidence in the first medium to the angle of incidence in the refraction in the second medium. ठीक है, इंसिडेंस कौन सा है फर्स्ट मीडियम में, रिफ्रैक्शन दूसरे मीडियम में होगा. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में I और R दोनों सेम मीडियम में होता है. तो व्हाट डज Snell's law state? It states that sin of angle of incidence to sin of angle of refraction
फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम, यहाँ पर गिवन पेयर मीडियम 1 मीडियम 2 फिक्स्ड मीडियम है। यही मीडियम आज से जाके दूसरी जगह, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 1 करोड़ साल बाद, या किसी दूसरे कंट्री में, वर्ल्ड में आप कहीं पर भी नापते हो, तो ये आई और आर उन गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए फिक्स्ड रहेगा। द रेशियो ऑफ देम, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ दोस, दैट इज sin i by sin r, will also be a constant, and this constant is denoted by m, which is also called as refractive index for the two medium। अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना बोल करके हम या तो इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव और एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? तो मेरे पास देखो भैया, दोनों मीडियम के साइन आई और साइन आर के हिसाब से एक रेशियो आ गया, साइन आई बाई साइन आर बाई साइन ऑफ आर इज ए कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज एम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ व्हाट इज दैट फॉर? इसके लिए फार्मूला हम यहां बना लेते हैं दोनों के टर्म्स में। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, यहां पर मीडियम 1 को मैंने नाम नहीं दिया, ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 is given by v1 and speed of light in medium 2 is given by v2, sorry, v1 and speed of light in medium 2 is given by v2, the ratio of v1 by v2 will also give us refractive index of the two medium, which is called as absolute refractive index of the medium, not absolute, so sorry, relative refractive index of the medium। अब relative क्यों बोलते हैं? हम यहाँ पर एक मीडियम से दूसरे मीडियम को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जा रही है तो कितने अमाउंट से बेंड होगी, ये बताता है हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज रेड इन टर्म्स ऑफ द टू मीडियम। टर्म के हिसाब से कैसे पढ़ेंगे? दिस विल बी रेड एज n21 व्हिच इज रेड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मतलब सेकंड वाला मीडियम, टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 व्हिच इज द फर्स्ट मीडियम जिसमें से लाइट आ रही है, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे? refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is given by the ratio v1 by v2। रेशियो क्या होता है? v1 by v2। v1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, और सेकंड क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाए? v2 by v1, this will become the ratio that will be read as n21। अब इसको क्या पढ़ेंगे? अब लाइट उल्टी जा रही है, सोचो, मतलब मीडियम 2 से मीडियम सेकंड में जा रही है, तो क्या हो जाएगा इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? भाई n21 will be read as refractive index of medium 1 with respect to 2, और ये कैसा हो जाएगा? रेशियो v2 by v1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमको यहाँ पर समझ आ गया है कुछ, तो हम देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब। अभी यहाँ पर तो मैंने डिस्क्राइब नहीं किया कि कौन सा मीडियम है, आई डिड नॉट टेल। सपोज मेरा पहला मीडियम है एयर या फिर वैक्यूम, और दूसरा जो भी मीडियम है, एनी मीडियम, मीडियम 2, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगा तो मेरा मीडियम 1 क्या है? वैक्यूम। वैक्यूम या एयर से कोई भी रेयरर मीडियम नहीं होता है। कम घनत्व वाले मीडियम को रेयरर बोलते हैं और ज्यादा वाला को डेंसर बोलते हैं। तो एयर या वैक्यूम की अप्रोक्सीमेट डेंसिटी इक्वल ली जाती है, वैक्यूम की और एयर की, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्पीड से लाइट उसी मीडियम में ट्रैवल करता है, एयर या वैक्यूम में, जिसकी वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। अब नेक्स्ट जिस भी मीडियम में जाएगा वो, तो हमेशा उसकी वेलोसिटी कम ही होगी, बढ़ेगी तो किसी में नहीं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्पीड से उन्हीं दो मीडियम में ट्रैवल करता है। तो इफ इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू एनी अदर मीडियम, दैट रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मतलब मीडियम 1 पहले ऊपर डाले थे, अपन नीचे कौन सा था? जिस मीडियम में जा रहा होता है उस मीडियम का। तो जिस भी मीडियम में जा रहा है वहां पर उसकी वेलोसिटी अगर v है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय c by v, which is the refractive index of a particular medium, which is the ratio of speed of light in medium 1, which is vacuum, speed of light in vacuum, upon speed of light in that medium, is called as
refractive index of that medium or absolute refractive index of that medium। मतलब पहला मीडियम को अगर मैं एयर मानते हुए दूसरे मीडियम में जितने वैल्यू से वो बेंड हो रहा है उसका रेशियो निकालूं तो वो उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, क्योंकि एयर से कम डेंसिटी किसी की नहीं होती। तो इसी के हिसाब से ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, देखो ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू है ये कभी भी क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी, इक्वल टू 1 आएगी या लेस देन 1 आएगी। देख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम m इक्वल्स c by v। तो ये हमेशा क्या आएगा, न्यूमरेटर किसी से छोटा हो सकता है क्या? सबसे ज्यादा स्पीड वहां पर किसकी है, एयर या वैक्यूम की, उसको तो हमने न्यूमरेटर में डाल दिया। तो भाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन नेवर बी लेस देन 1, इट कैन ओनली बी n कैन ओनली बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमेशा ग्रेटर देन। सबसे ज्यादा आती है डायमंड के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज समथिंग राउंड अबाउट 2.45 के आसपास तक जाती है। इससे बड़ी वैल्यू किसी की नहीं होती क्योंकि वो मोस्ट डेंस ऑप्टिकल मीडियम होता है, सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला ऑप्टिकल मीडियम होता है डायमंड। ये चीज समझ में आ गई है ना? तो भाई हमको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए भी पढ़ने आ गया, हाउ इट इज रेड फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम। ओके, सो व्हेन वी रेड अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको कुछ चीजें समझ में आई कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड, व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड। तो भाई मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है, कितना बेंडिंग हो रहा है रे ऑफ लाइट का, है ना, ये सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेट अस जॉट डाउन व्हाट फैक्टर्स डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एक्चुअली डिपेंड अपॉन। एक साथ एक जगह पर रहेगा तो समझ में। तो पहला फैक्टर सबसे पहला हमारा आ जाता है नेचर ऑफ द मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम, nature of medium absolutely depends upon nature of the medium, means the medium whether it is optical whether it is non optical, its density, on what factor does it all depend। तो ये वहां पर समराइज हो गया, नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, हाउ डज इट डिपेंड, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स डेंसिटी। डेंसिटी ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी। यू कैन डायरेक्टली स्टेट दैट the refractive index of the medium is directly proportional to rho, that is density of the medium। ये लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसी को पॉइंट नंबर 2 में डालते हैं, डेंसिटी ऑफ मीडियम। डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम के ऊपर भी डायरेक्टली हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द मीडियम। थर्ड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मीडियम की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। We studied refraction through glass prism, and glass prism is always possible and it is able to differentiate or deviate all the rays of light when it is passing through it as a single light। और जब बाहर निकलने के बाद 7 कलर में बढ़ के बाहर निकलता है, उसके पीछे कॉज क्या है? कॉज यही होता है कि लाइट रे इज कंप्राइजिंग ऑफ 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स। हमको ये पता है, हम इसके पहले चैप्टर में पढ़ चुके। सभी की वेवलेंथ डिफरेंट होती है, तो नॉट ऑल मीडियम, सभी मीडियम एक मात्रा से, बराबर मात्रा से सबको डिविएट नहीं करते हैं, किसी को कम करते हैं, किसी को ज्यादा करते हैं। जहां पर वायलेट को सबसे ज्यादा करते हैं, रेड को सबसे कम करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो रहा है, वहां पर भी जो डिपेंडेंस फैक्टर होगा वो वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड के ऊपर होगा। अगर रेड कलर का वेवलेंथ का लाइट यूज करेंगे तो कम डिविएशन होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, और वायलेट कलर का यूज करते हैं तो ऑब्वियसली वो ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा थर्ड पैरामीटर जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है, कलर ऑफ द लाइट। कलर ऑफ लाइट बेसिकली ये बात कर रहा है लैम्डा की, व्हिच इज कॉल्ड एज वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना। अब हाउ डज द वेवलेंथ डिसाइड्स व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम? इट इज गिवन बाय कॉचीज रिलेशन, CAU
CAUCHY, ठीक है, apostrophe Cauchy's रिलेशन, इसका दो फैक्टर्स हैं यहाँ पर, म्यू इज इक्वल टू a प्लस b बाई लैम्डा, a प्लस b बाई लैम्डा का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर है, नॉट होल स्क्वायर, लैम्डा का स्क्वायर, where a and b are the constants dependent upon which form of light and which form of medium is used, plus lambda is the wavelength of the light। तो यहाँ से बेसिकली ये दो कांस्टेंट्स हैं, डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है हमको समझना क्या है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो कैसा डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कैसा कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ, स्क्वायर वेवलेंथ के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ। भाई वेवलेंथ बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, तो पता है बड़ा वेवलेंथ की लाइट कम रिफ्रैक्ट होती है, समझ आया, ठीक है, रेड कलर कम डिविएट होता है, वायलेट कलर ज्यादा डिविएट होता है, वो तो रिलेशन से क्लियर हो जाता है। लास्ट है टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, देखो टेम्परेचर ऑफ मीडियम, भाई कोई बता सकता है कॉमन सेंस लगा करके कि टेम्परेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, तो कैसे करेगा, कैसे डिपेंड करेगा, हाँ डेंसिटी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, और डेंसिटी कम होने से क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता है, तो हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, 1/T के ऊपर डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा।